All right, let's continue to learn about the church. और हम लगातार सीखने पाएंगे इस कलीसिया के बारे में। How many of us want to plant churches? कितने लोग कलीसिया की स्थापना करना चाहते हैं? Okay, very good. Oh my बहुत अच्छी goodness. बात। It's like roughly 40% of the class. 40%। How many of us want to serve in church? कितने लोग कलीसिया में सेवा देना चाहते हैं, करना चाहते हैं अपनी कलीसिया में? What about the remaining people? बाकी लोग, बचे लोग? Okay, very good. So a good number say that you want to serve. और एक अच्छा जो गिनती हम देखते हैं कि कलीसिया की सेवा आप करेंगे। Okay, so the course that we are learning is relevant to all of you. और जो विषय को हम सीख रहे हैं वो सभी के लिए उपयोगी है। So I need your full attention. इसलिए मैं आपके पूर्ण ध्यान को चाहती हूँ। So till now we've learned that the church is not man's idea. और हमने अभी तक सीखा कि कलीसिया जो है मनुष्य का तरीका नहीं है। It is God's idea. और वो परमेश्वर का तरीका है। And Jesus is saying, I will build the church. और इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। So the church is strong. और इसलिए कलीसिया एक मजबूत है। Okay, Jesus is building, nothing can destroy it. और अगर यीशु मसीह ने जिस कलीसिया को बनाया कोई भी इसको तोड़ नहीं सकता। The church has the keys of the kingdom. और जो कलीसिया है परमेश्वर के राज्य की एक कुंजी है। And the church, even the gates of hell will not prevail against और it. इसलिए अधोलोक की शक्तियां उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। Okay, how many of you are happy? कितने लोग खुश हैं? Yeah, we feel so happy, right? God has made the church powerful. और इसलिए हम सब खुश तो है, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? एक प्रभावशाली कलीसिया का निर्माण किया है। Okay, so I don't know about you, I feel so excited when I'm teaching you all these things. मैं बहुत ही उत्साहित हूँ जब मैं यहाँ से सिखा रही हूँ। Okay. आप मालूम नहीं कितना उत्साहित होंगे। And the church is the body of Christ. और जो कलीसिया है मसीह की देह है। You and I are united with Christ. और मैं और आप मसीह में एक है। We have membership in the spiritual church. और आत्मिक कलीसिया के मैं और आप सदस्य है। The church is eternal. और कलीसिया अनंतकालीन है। You know, this earth will pass away, but the church will remain. और ये पृथ्वी सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन कलीसिया बनी रहेगी। The church is all of us who believe in Christ. और जो मसीह में विश्वास करते हो कलीसिया। And those who have, passed away or gone to be with the Lord, they are also part of the church. हाँ, जो लोग मसीह में मरे हैं, वो भी एक कलीसिया के भाग है। So we are the body of Christ, so we are the church on the earth, and there is a church in heaven. और हम इस पृथ्वी पर हम एक कलीसिया है, और स्वर्ग में भी कलीसिया पाई जाती है। Okay, so the people who have believed and who have gone to be with the Lord are in heaven. जिन्होंने मसीह पर विश्वास किया है और जो मसीह में सो गए हैं। Okay, and we said that the local church is the expression of the spiritual church of God. और हम देखते हैं कि कलीसिया परमेश्वर की उस आत्मिक बातों का प्रभाव डालती है जबकि हम स्थान में होते हैं। Okay, and so it's important for each one of us to belong to a local church. और हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जब हम इस स्थानीय कलीसिया के जो सदस्य होते हैं। And we have to commit to a local church. और हम स्थानीय कलीसिया के लिए समर्पित जब होते हैं and grow in that local church. और हम कलीसिया में स्थानीय कलीसिया में हम बढ़ोतरी को भी पाते हैं। Okay, so that's where God wants us to engage all our gifts and our talents. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने दान वरदानों में परिपूर्ण होकर उस कार्य में हम बढ़ते चले जाएं। And according to chapter 2, the mission of the local church is to do what? और जो स्थानीय कलीसिया का जो कार्य या मिशन क्षेत्र क्या है? So yes, to preach the gospel. कि हम सुसमाचार को सुनाएं। No, our mission is not, just to come together. और हमारा केवल कार्य ये नहीं है कि हम एक साथ एक जगह इकट्ठा हो। Our mission is not just, okay, we will have fun.
और हमारा कार्य ये नहीं कि हम यहाँ पर आकर मजा करें, And our mission is not that, okay, we'll help each other and this is what the church is. और हमारा कार्य ये नहीं है कि हम एक दूसरे की सहायता करें, इस प्रकार की कलीसिया नहीं है। Okay, so yes, we may help each other, but there is a greater mission हाँ, of the church. लेकिन हाँ, एक दूसरे की हमें मदद करना है, लेकिन उससे एक बड़ा कार्य हमारे पास And है we must never forget it. और उसे कभी भी भूलना नहीं The है। church has to preach the gospel. और कलीसिया की जिम्मेदारी है सुसमाचार का प्रचार Okay, करना, and God has given us that mission. और परमेश्वर ने वो कार्य हमें दिया है। Every single one of us, no matter what calling we have to proclaim the और gospel. प्रत्येक जहाँ पर हर एक की जिम्मेदारी है, चाहे हमें किसी प्रकार की बुलाहट है या हम बुलाहट को पाए उस कार्य को पूरा करने के लिए। Even as a local church, the responsibility is to preach the gospel. और ये स्थानीय कलीसिया की जिम्मेदारी, स्थानीय कलीसिया में होकर हमें जिम्मेदारी है कि सुसमाचार को सुनाना है। The reason why I'm repeating it again and again is because sometimes we can forget it. और मैं बार बार इसको क्यों दोहरा रही हूँ, कई बार हम भूल जाते हैं। We can forget why we have come together. क्योंकि हम भूलने का कारण ये है कि हम इकट्ठा हुए हैं। The church, it'll be so sad if the church forgets what it's supposed to do. और ये बड़ी बड़ी दुखद की बात है कि जब कलीसिया उस बात को भूल जाती है। Sometimes we think, okay, the mission of the church, have conference, have meeting, have this, have that. But are we truly doing that with the mission in mind? कई बार कलीसिया में इस प्रकार होता है, सम्मेलन करते हैं, बड़े यूथ का रिट्रीट प्रोग्राम, ऐसे कई प्रोग्राम करते हैं, लेकिन कई बार हम उन चीजों को भूल जाते हैं कि वो कलीसिया का कार्य कौन सा है। So the main purpose of the church is to proclaim the gospel. और मुख्य कलीसिया का उद्देश्य ये है कि सुसमाचार को फैलाना। So what is the message of the church? और कलीसिया का संदेश क्या है? Is the message of the church, okay, this is a place that will take everybody in? और कलीसिया का संदेश ऐसा है क्या, हम सब लोग को इकट्ठा एक जगह बुलाने के लिए? Okay, or the church can have any other message. और क्या कलीसिया के पास दूसरा संदेश भी हो सकता है? But what is the primary message of the church? कलीसिया का प्राथमिक संदेश क्या है? It's the gospel. वो है सुसमाचार। Okay, what is the gospel? सुसमाचार क्या है? What is the gospel? सुसमाचार क्या है? Okay, so the central message of the gospel is that Jesus is the one. Jesus is the Christ. He has given his life for us, and through him we have salvation, eternal life. केंद्रीय जो बिंदु है यीशु मसीह है, और उसने हमें बुलाया है, छुटकारा दिया है। Okay, so look at Paul. Paul is very determined. और देखते हैं कि पौलुस के बारे में देखिए, पौलुस बहुत ही उन बातों के स्पष्ट है। So 1 Corinthians 1 verse 17. पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 17 पद। He says, "For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel." और वो कहता है कि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा Not है। with the wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of no effect. और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, कि ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। Okay, and verse 18 he says, "For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God." क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। So for Paul, his primary assignment was to proclaim the gospel. और पौलुस की प्राथमिक कार्य ये है कि वह सुसमाचार को सुनाना। People around him would have said, "What is this foolish message?" और आसपास लोग जो सोच रहे हैं कि ये क्या मूर्खता की बात है। But for Paul, he's writing, this gospel is the power of God unto salvation. और वो कहता है कि जो क्रूस है वो क्रूस की सामर्थ है, ताकि लोग उस सुसमाचार को समझ सके। Okay, so we must learn to proclaim the gospel in its entirety. और हमें इस बात को सीखना है, उसका सुसमाचार सुनाना सभी लोगों के लिए है। Okay, and also the message of the church is the whole counsel of the word of God. और दूसरा ये है कि Whole counsel of the word of God. और परमेश्वर की संपूर्ण मंशा को पूरी करना है। Okay, so this is what Paul said that he preached to the churches. और इस
पौलुस का मकसद भी यही है और कलीसिया में सुसमाचार सुनाने का भी तात्पर्य उसके लिए यही है। So in Acts 20, he tells the gathered elders that I have spoken to you the whole counsel of the word of God. इसलिए प्रेरितों काम की पुस्तक 20 अध्याय में देखते हैं कि वहां पर जो लोग को इकट्ठा प्राचीन को इकट्ठा करके कहता है कि वो परमेश्वर की जो मनसा है उसको पूरी करने के लिए। So the whole counsel means everything which is in the word of God. और संपूर्ण मनसा का मतलब यह है कि जो परमेश्वर के वचन में आया है और बताया गया है। Okay, so for example, I could only keep preaching that God is a God of love, God is a God of love. अगर मैं इस बात का प्रचार करती रहूं कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम करता है, इसी को प्रचार करती रहूं, if I never share with you that God is a God of righteousness and justice, और इस बात को मैं अगर नहीं बताऊं कि परमेश्वर धर्मी है और वो धार्मिकता को पूरी करता है, we won't get the understanding that okay, I have to live righteous. और तब हम ये बात जब तक उस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मुझे किस प्रकार धार्मिकता के लिए जीवन जीना है। We may have only this understanding, okay, I can do anything, God will forgive me. और मैं कुछ भी हम कई बार सोचते हैं मैं कुछ भी करूं परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा। But that's not the whole counsel. और ये परमेश्वर की मनसा नहीं है। So there are many other things in scripture which have to be shared. और परमेश्वर का वचन और भी बातों को बताता है कि मुझे क्या बातों को लोगों को बताना है। So the church has the responsibility to preach everything. और कलीसिया की जिम्मेदारी है कि संपूर्ण बाइबल की बातों को लोग तक बताना है, सुनाना है। So if we only take one portion and we are only sharing that, then people will not be aware of the other things. वचन का एक छोटा सा भाग बता दे लोगों को तो इसका और लोग इस बात को समझ नहीं पाएंगे और पूरी तरह से उनके जीवन के अंदर भी कोई बदलाव को देखने नहीं पाएंगे। So when somebody is born again, if the church will not teach them how to live a Christian life, how can they live? अगर एक व्यक्ति विश्वास करके उद्धार को पा लेता है, नया जन्म पा लेता है, अगर हम परमेश्वर के वचन को सिखाएंगे नहीं तो वो कैसे विश्वास में बढ़ पाएगा। So the message of the church is to teach the whole counsel of the word of God. और संदेश ये है वचन के द्वारा कि परमेश्वर की जो बातें वचन में दी गई है उन सब उस मनसा को पूरी रीति से उन लोगों को समझाना सिखाना जरूरी है। And it is the responsibility of the church to prepare the people into maturity. और इस प्रकार कलीसिया की जिम्मेदारी है उन लोगों को तैयार करना ताकि वो परिपक्वता को अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर सके। The Bible says that there will be many winds of doctrine. और शैतान के पास बहुत से ऐसे पंख है जो सिद्धांतिक पाए जाते हैं। Okay, so there will be many wrong teachings that will come up. और उसके कारण बहुत सी गलत शिक्षाएं आ रही है और लोगों के बीच में कलीसिया में पाई जाती है। In the last days there will be people, false teachers, false prophets, false apostles. और इसमें हम देखते हैं आखिरी दिनों में गलत भविष्यवक्ता, गलत उपदेशक, गलत प्रेरित लोग को हम खड़े हुए देखने पाते हैं। But when the church prepares the people to be strong in the word, they will not be shaken. अगर हम विश्वासियों को परमेश्वर की वचन की शिक्षाओं को मजबूती से हम सिखाएंगे तो गलत तत्व ज्ञान है, गलत शिक्षा है, उससे वो अपने आप को क्या संभाले रखेंगे। So this is the responsibility of the church to proclaim the message. और इसलिए कलीसिया की जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के सुसमाचार को वो सुना सके और समझा सके। We should never have a different message than Christ and the word of God. और जो हमें दूसरा कोई ऐसा संदेश नहीं है, केवल संदेश क्या है जो वचन में मसीह के बारे में और मसीह के बारे में बताता है। Sometimes church can become a place where we are having motivational talks. और कई बार कलीसिया क्या होते हैं कि वहां पर एक प्रोत्साहन की बातों को और उनको उत्साहित करने वाली बातों को सिखाते हैं। Okay, so we can just have motivational talk and say, you are good and everything about you is great, and people will come. और कई देखते हैं इस बात को बताया जाता है कि आप अच्छे हैं, आपके कार्य अच्छे हैं, इन बातों को बताते हैं तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है और लोग आते हैं। But where is the message of the gospel? कहाँ है वो सुसमाचार का संदेश? Where is the word as the foundation? और वो कहाँ है वो वचन जो नींव को पक्की करती है सिद्धांतिक बातों में? So when we just give these messages, people's lives will not change. और अगर आप ऐसे संदेश को बताएंगे
तो कभी भी उनके जीवन में परिवर्तन या बदलाव नहीं आएगा। So, as a church, we have to be intentional about proclaiming the word of God. और इस कलीसिया इस बात से अभिन्न होना है और अपने आप को ज्ञात कराना है कि मुझे सुसमाचार को सुनाना है, सुसमाचार के प्रति लगाव होना है। So, what are the methods that we can use to proclaim the gospel? कौन कौन से ऐसे पद्धति या तरीके हैं सुसमाचार को सुनाने के लिए? So, whatever we use must be a pure method. और हम एक बात को याद रखना है, हमें ऐसे तरीके या पद्धति को अपनाना है जो एकदम शुद्ध है या साफ हो। So, I should not have a deceptive heart to take the word of God and twist it. और हमें हमारे अंदर इस बात को, ये तरीका को नहीं अपनाना है कि मैं अपने आधार पर उस वचन को बताकर या बदल दूं या परिवर्तित कर दूं या उसको हटा दूं। In 2 Corinthians 2:17, Paul says that we are not of those who peddle the word of God. और दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है कि मैं परमेश्वर के वचन में मैं किसी प्रकार का मिलावट ना कर पाऊं। Okay, so it is possible to peddle the word of God. ये तो बहुत ही आसान हो जाता है कि परमेश्वर के वचन को कई बार उसमें मिलावट की बातों को। Okay, but when we proclaim the word, we should proclaim it with purity. जब हम परमेश्वर के वचन को सुनाते, सुसमाचार सुनाते, हमें क्या होना चाहिए? हमारा तरीका एकदम साफ या शुद्ध होना चाहिए। The words we use must be wholesome words, good words. जब हम वचन को लेते हैं, बोलते हैं, उसमें साफ और सुथरा और क्या बोलना चाहिए? मन की सच्चाई से भरा होना चाहिए। And not only the purity of the way we share, but the conduct of our life must match what we are speaking. और अगर हो सकता है वचन जो हम बोल रहे हैं, इस बात को याद रखना है कि वो मेरा जीवन उस वचन के आधार पर है। अगर है तो उन बातों को लोगों के सामने बताना So जरूरी in है। 2 Corinthians 6:3, Paul says, we don't give offense to any man. दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 3 और 4 पद में ये बताया गया है कि हम किसी बात से ना ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते हैं। So he's saying that in everything they do, right? Paul and his team, they don't want to offend any believer, any person. और पौलुस और उसके जो समूह है, जो कार्य उनका ये तात्पर्य है, किसी को भी हम ठोकर ना दे या अवसर को बना के दे। Okay, so there was a time when money had to be collected for relief for the church of Jerusalem. और ऐसा समय था जब लोगों ने सेवा के लिए, यरूशलेम की कलीसिया के लिए जो चंदा को इकट्ठा किया, भेंट को इकट्ठा किया। So the Corinthian church was giving some money to the church of Jerusalem. और जो कुरिन्थी की कलीसिया, यरूशलेम की कलीसिया को पैसा इकट्ठा करके जब समय आया देने का, So at that time, Paul sent 2 people who had good reputation to collect the money. और वहां पर पौलुस कहता है कि जो ऐसे सेवकों को चुने जिसमें जो लोगों के सम्मुख उनका अच्छा काम हो, अच्छे स्वभाव को प्रकट करने वाले हो। He did not go. वो नहीं जाएगा। Why? क्यों? No, he was so detailed in the way he handled himself. He did not want anybody to say that Paul has taken the money. और वो इस बात से बड़ा सचेत था कि कोई भी व्यक्ति उस पर कोई किसी भी प्रकार का आलचन या दोष लगा सके। Okay, and even the 2 people who went, they were the kind who were responsible, and nobody could complain that they have taken the money. हाँ, उन्होंने क्या किया? 2 भाइयों को तैयार किया। उनके वो जो व्यक्ति है, लोग उसको जानते थे, उन्होंने जिम्मेदारी को लिया और जिम्मेदारी से उस कार्य को पूरा करने In के 2 लिए। Corinthians chapter 8, he has explained all this. और दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय में पूरा उस बात के बारे में वर्णन किया गया है। So we can understand how he was living such that he does not offend any human being. और यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं किस प्रकार एक व्यक्ति को अपने जीवन के द्वारा बताना है, प्रभाव करना है, ताकि किसी को भी ठेस या ठोकर का कारण ना बन सके। So this is the way we have to do ministry. और ये तरीका है सुसमाचार सुनाने का, Without offending people, बिना लोगों को ठेस पहुंचाओ, ठोकर खिलाकर, but at the same time without compromising the truth of the word. और दूसरा ये है कि हम किसी परमेश्वर के वचन को किसी के साथ साझा या संसार के साथ या लोगों के साथ समझौता करके नहीं करना है। Okay, because yes, sometimes when we share the word of God, people get offended. और कई बार हम वचन को सुनाते हैं,
लोग चिंतित हो जाते हैं, सोचने लगते हैं। Okay, but of course, that will happen. But what we are saying is we should not intentionally offend people. और हमें जानबूझकर लोगों को ठेस नहीं पहुंचाना, ठोकर का कारण नहीं बनना हम उनके लिए। And the message that we bring should be brought with the power of the Holy Spirit. और हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा सामर्थ के द्वारा परमेश्वर के वचन को लेना है। In 1 Corinthians 4 and verse 20, और पहला कुरिन्थियों 4 and 20, 4 का 20 में Paul says, "For the kingdom of God is not in word, क्योंकि but in power." परमेश्वर का राज बातों में नहीं बल्कि सामर्थ में है। Okay, so in the proclamation of the word, people must experience the power of God. परमेश्वर के वचन की जब घोषणा की जाती है, लोग परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव करने पाए। So it's not enough for us to use the latest techniques. और हम ये अभी की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने के द्वारा नहीं, Okay, and it's not really enough for us to use the latest media. और हमें जो अभी जो आधुनिक जो मीडिया संगठन, आधुनिक चीजों का मीडिया का इस्तेमाल करने के द्वारा नहीं। Right? So there's nothing wrong with these things. ये बातें हमारे लिए गलत तो नहीं है। But the question we're asking is the word coming with the power of the Holy Spirit? क्या परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ है? If it is only coming as a good presentation, और मान लीजिए एक अच्छा एक व्यक्तित्व के द्वारा या बताने के द्वारा, right? If it's coming as a good presentation and no power of God, और It has अगर no मान लीजिए impact. बहुत अच्छी रीति से समझा रहे हैं लेकिन उसमें सामर्थ्य नहीं है तो, okay, so the way we proclaim the message should be together with the power of the Holy और Spirit. जो परमेश्वर के हम ये देखना है, जानना है क्या वो वचन परमेश्वर से आत्मा के द्वारा और सामर्थ्य से भरा हुआ है कि नहीं। Okay, and the word should be spirit led or spirit directed. और कैसा होना चाहिए? निर्देश कैसा होना चाहिए? आत्मा से निर्देशित होना चाहिए And strategic. और युक्तिपूर्ण होना चाहिए। So it simply means that the message must be purposeful. हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो तरीका है, वो उसमें एक उद्देश्य या युक्तिपूर्ण होना चाहिए। It should be timely, उसमें समय के अनुसार होना चाहिए and we should be well planned in the way we do the ministry. और अच्छी तरह से योजनाबद्ध होकर योजनाबद्ध पद्धति के अनुसार उस कार्य को पूरा करने के द्वारा। And the message that we proclaim can be relevant, made relevant. क्या वो परमेश्वर का वचन तो पूरा तरह से तैयार है, ये उत्तमता के साथ है। So relevant means to share the word or do the ministry in a way that people can understand. और वो तरीका वो है कि लोग परमेश्वर के वचन को जो सुनाया गया उसको समझ पाना है। See, for example, we use games, activities for children. और उदाहरण के लिए हम बच्चों के लिए खेल और कुछ एक्टिविटीज का हम इस्तेमाल करते हैं समझने Okay, के लिए। and the kind of English we may use for preaching to young people may be different from the English that we use for adults. हो सकता है उन युवा बच्चों को वचन को सिखाना समझाना वो अलग हो सकता है। But this is what we mean. It has to be relevant or it has to make sense to that group. और हमें क्या करना है? उस समूह के लिए सही रीति से हमें उत्तमता के साथ परमेश्वर को वचन को बताना होगा। But at the same time, we must not compromise. और उस समय ऐसे उस समय हमें समझौता भी किसी बात से नहीं करना चाहिए। Sometimes there's a lot of pressure, especially like when you're speaking to young people, to be cool and happening. और अब देखते हैं जब युवावस्था के जो जवानों से जब बातचीत है, बड़े शांत होते हैं, बड़े अपने जीवन को प्रभावित करने वाले होते हैं। So you have the pressure of using, the young people's language. और कई बार होता है जवानों की उस भाषाओं को हम जो पसंद करते हैं उसको बोलने का हम प्रयास करते हैं। But we have to be sensitive. What is correct, what is not. So just because the young people like it, we can't just, use the wrong words. लेकिन हमें क्या करना है? बड़े सावधान होना है, सचेत रहना है कि हमें किन बातों को बोलना है, किन बातों को उन बातों के द्वारा समझकर उनको समझाना है। So till now we said that the church has a mission. और अभी तक हमने देखा कलीसिया के पास एक कार्य है। We said that the church has a message. और कलीसिया के पास एक संदेश है। And the church should use
pure methods. और कलीसिया एक शुद्ध तरीके से या पद्धति को अपना सके। Now we'll try and understand the church government. अब हम देखेंगे स्थानीय कलीसिया का प्रशासन या उसकी रचना के बारे में देखने पाएंगे। Okay, so it's quite interesting. We are going to start from the start or the birth of the church. और हमने बड़े उत्साह के साथ हमने कलीसिया के जन्म के बारे में, उदय के बारे में हमने सीखा है। So from the book of Acts, we can understand what kinds of positions, what kinds of leadership existed in the early church. प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि किस प्रकार एक कलीसिया का निर्माण होना चाहिए, कलीसिया में लोग होना चाहिए, कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो बढ़ा सके, ऐसे लोगों के बारे में हमने सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं। So when we go back to the very first church, जब हम पहली शताब्दी कलीसिया में जब देखते हैं, that was the church of Jerusalem. और वो है यरूशलेम की कलीसिया। So what kind of leaders did the church of Jerusalem have? और पहली शताब्दी की कलीसिया जो यरूशलेम में थी, वो किस प्रकार के लोग थे या किस प्रकार के लोग उसमें पाए जाते थे? So on the first day of the church, पहले दिन जो कलीसिया, okay, so this is the 120 people in the upper room. 120 लोग एक ऊपरी कोठरी में या एक कमरे में थे। So the size of the church you could say was 120. और उसका चिन्ह बता सकते हैं 120। And there were 12 leaders, they were the 12 apostles. और जो 12 जो अगुवे थे वो एक 12 प्रेरित के रूप में थे। And at that time you don't read any names like deacon, bishop. और उस समय ऐसे कोई भी नाम हमने नहीं सुना कि डीकन होते, उसमें बिशप होते या प्राचीन होते करके हमने नहीं सुना। It felt like one person was the leader above all the 12 apostles and the church. और हम देखते हैं कि उस 12 प्रेरितों में वो एक मुख्य अगुवा होता था, और इसी प्रकार कलीसिया में भी मुख्य अगुवा So पाए जाते थे। who was that leader? कौन कौन अगुवे थे उस समय कलीसिया में? प्रेरितों में कौन अगुवे थे? Peter. Very good. पतरस। Okay. So Peter seems to have emerged as the leader of the church in those initial days. और उन दिनों में जब कलीसिया की शुरुआत हुई, उस समय पतरस एक मुख्य अगुवे के रूप में पाया जाता था। No, the Bible doesn't call him, pastor, all that, but we know 12 apostles, so he was an apostle. हाँ, वो समय ऐसे पास्टर या किसी भी प्रकार के पद से नहीं जाना जाता था, लेकिन वो प्रेरितों के नाम से वो जाने जाते थे। And later, slowly we come to read of the name of James. और हम धीरे से जब पढ़ते हैं तो वहां पर एक याकूब के बारे में नाम आता है। So it's very clear that James was the apostle, or you can say something like the pastor of the church of Jerusalem. और हम देखते हैं उस समय उस प्रेरितों में एक याकूब जो था, वो उस कलीसिया का वो एक मुख्य अगुवा था। So you notice you don't have any other titles, names, roles at that time. और उस समय किसी प्रकार का पद या कोई विशेष नाम से उनको पुकारा नहीं जाता We था। only know the term apostles. और केवल हम एक ही शब्द को जानते हैं, वो है प्रेरित के रूप But में। initially Peter was sort of the leader, and later James became the और leader. हम देखते हैं कि पतरस के साथ जो याकूब भी एक अगुवे के रूप में नियुक्त किए गए। And slowly when you go Acts chapter 6, और जब धीरे से हम प्रेरितों काम की पुस्तक 6 अध्याय को हम जब जाते हैं, उसमें पढ़ते हैं, it feels like the church became bigger. और वहां देखते हैं कलीसिया एक बड़े स्तर पे हम देखने पाते हैं। So many people started getting saved, coming to the church. बहुत से लोग वहां पर कलीसिया में आने प्रारंभ किए, उद्धार को, नया जन्म को उन्होंने पाए। So when there are more people, there is more work. और ज्यादा लोग हो गए, ज्यादा काम उनका बढ़ गया। So at that time, the apostles, they feel that the work is too much. और तब उस समय प्रेरितों ने सोचा, उनके दिमाग में ये आया कि ये काम अब हमारे लिए बहुत बड़ा है। So they called the people and they told them, you know what, we are going to choose 7 men from among you to help in the distribution of food. तब उन्होंने देखा कि हम में से 7 लोग को चुनाव करना है, और ताकि वो भोजन की भी सेवकाएं को कर सके। So they decided that they are going to spend time in the word, in prayer, and these other 7 men will do the work. और क्या हो गया कि कुछ लोग उन्होंने प्रार्थना में समय व्यतीत करने के लिए, परमेश्वर के वचन में समय को व्यतीत करने के लिए उन्होंने अपना समय को अलग किया, और जो लोगों को जिम्मेदारी दिया, वो लोगों की सेवा में वो आ गया है। So it's something like
the volunteers of the first church. और पहली शताब्दी की कलीसिया में स्वयं सेवक लोग खड़े हुए। So if you had to select volunteers in your church, what kind of volunteers would you select? आप अपनी कलीसिया में जो स्वयं सेवकों को चुनते हैं तो किस प्रकार के लोगों को चुनाव करना है? Just think about it. आप सोचें। Okay, so you may think they should be talented, they should be like this, like that. अब आप सोचते हैं कि उनके अंदर वरदान चाहिए, बिल्कुल सक्षम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हम सोचते हैं। But in this passage of Acts 6, there are some qualities listed for the और हम volunteers. देखते हैं कि प्रेरितों काम की पुस्तक 6 अध्याय में कि वहां पर कुछ योग्यताओं को दिया गया है लोग चुनने के लिए। So these qualities are, और ये है यहाँ पर देखते हैं योग्यताएं। so they must be of honest report, or in other words, very good reputation. और उनका एक अच्छा नामी या व्यक्ति होना चाहिए, They should सम्मान पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। they should be full of the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए They should be full of wisdom, और ज्ञान से भी परिपूर्ण होना चाहिए। and they should be responsible. और दूसरा अगला ये है कि वो काम के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। Okay, I find this very unusual. और ये बड़ा मुश्किल होता है इस चीज को हमें ढूंढना मिलने के लिए। Okay, so what they're asking for is not just the ability to distribute food, but they're asking for a spiritual person. और केवल खाना बांटने के लिए ऐसे बांटने वाले लोग ही नहीं, बल्कि वहां पर कुछ योग्यताओं को भी दिया है कि वो खाना बांटने वाला व्यक्ति भी कैसा होना चाहिए। So why do you need somebody with good reputation to distribute food? और कोई एक अच्छा नामी व्यक्ति है, वो अपने खाना बांटने खाना उसको क्यों बांटना जरूरी है? Why do you need a person full of Holy Spirit and wisdom to distribute क्यों food? पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति खाना को बांटने के लिए लाइन में खड़ा, उसको बांटने के लिए खड़ा करना है? See, but the early church had very high standards. लेकिन पहली शताब्दी की कलीसिया उच्च स्तर की पाई जाती थी। They wanted people in leadership whom they could trust as, okay, these are godly people. और उस समय लोगों की सोच थी कि उस स्तर में आने के लिए वो परमेश्वर के लोग, उस परमेश्वर से परिपूर्ण, परमेश्वर की ओर से परिपूर्ण होने वाला व्यक्ति होना So चाहिए। only having skill, talent, ability is not enough. और केवल एक कौशल या दान वरदान ये सब कुछ उसके द्वारा नहीं होता है। In the early church, they were looking for godliness. और पहली शताब्दी की कलीसिया वहां पर देखते थे कि जो परमेश्वर की बातों से परिपूर्ण हुए लोग। Okay, so they've chosen godly people and committed people to do the work. और उन लोग एक परमेश्वर के स्वभाव से परिपूर्ण आत्मिक योग्यता से भरे हुए लोग को चुनाव किया उस समय। So these people were serving in the responsibilities of the church. और ये जो व्यक्ति है जो कलीसिया की जिम्मेदारी कलीसिया के कार्य के लिए जिम्मेदार ठहरे हुए व्यक्ति ये ठहराए गए। And later on, years passed by, and when Paul wrote to Timothy, even at that time, he referred to this category of people. और जब पौलुस ने तीमुथियुस को पत्र लिखा तब इस बात को स्मरण दिलाया और इस बात को याद दिलाया कि किस प्रकार के लोग को चुनाव करना है जो उसके बारे में। So this category is also known as deacons. और एक और जिसमें एक तरीका उसको अपनाया गया, उसको दिया गया है डीकन के रूप में। So basically you had apostles और देखते हैं कि प्रेरित लोग के रूप में in the church, कलीसिया में, and then in Acts 6 you have deacons. और वहां पर देखते हैं कि डीकन्स लोग के बारे में देखते हैं। So डीकनों का what is the meaning of deacon? डीकन का अर्थ क्या है? The meaning is simply attendant or helper who carries out a work. डीकन का जो मतलब है सहायक, सेवक या टहलुआ जो दूसरों के आदेशों का पालन करता हो। Okay, so I know many of us maybe we are not familiar with these terms. हो सकता है हम कई लोग इस शब्द से इतना जानकारी नहीं होगा। But in some churches these words are used. कई कलीसियों में इन शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है। So now what have we understood? There's a set of people to help. They are called as deacons. हाँ, जो ऐसे विशेष नियुक्त किए हुए व्यक्तियों को डीकन कहा जाता है या सहायक और सेवक टहलुआ करने वाले।
And they were supposed to help in the administrative work and not necessarily the spiritual work. और ये हो सकता है आत्मिक बातों को में मदद करने वाले नहीं, बल्कि कलीसिया के प्रशासनिक या कलीसिया के प्रबंध मामलों में ध्यान देने वाले व्यक्ति, They are called deacons. और ये डीकन कहलाते हैं। So in many other places, Paul refers to this word. और पौलुस कई जगह इस शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। In Acts 16, he calls a woman a deaconess. और प्रेरितों काम की पुस्तक में डीकन्स के बारे में जो महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया गया है। So there's a lady by the name of Phoebe who is a deacon or और एक deaconess. सीबी नाम की जो महिला थी उसको एक डीकन के रूप में कहा गया है। So now we've understood that there were people who came to help alongside called as deacons. और जिस प्रकार देखते हैं कि ऐसे लोग सहायता के लिए सहायता करने के लोग आए और उनको डीकन कहा गया है। But you know, even the deacons can be allowed to do spiritual ministry if God calls them to do it. अगर परमेश्वर ने डीकन्स लोग को सेवकाई के लिए बुलाहट दिया है तो उस काम के लिए वो जा सकते हैं या कर सकते हैं। Now, Philip in the book of Acts is a great example. और प्रेरितों काम की पुस्तक में हम फिलिप को एक महान व्यक्ति को रूप में हम उसको देखने पाते हैं। In the book of Acts, later on, he's called as Philip the evangelist. और बाद में प्रेरितों काम की पुस्तक में देखते हो, बाद में एक सुसमाचार प्रचारक के नाम से वो जाना गया। So from being a deacon, he involved in spiritual और ministry. हम देखते हैं कि वो डीकन भी क्या आत्मिक सेवा को करते हुए हम देखने पाते हैं। So slowly the church of Jerusalem grew. और धीरे धीरे यरूशलेम की कलीसिया बढ़ती गई, स्थापित होती गई। They sent leaders from Jerusalem to plant churches in other places. और यरूशलेम से कलीसिया के लोगों को दूसरे जगह में भेजा गया कलीसिया की स्थापना करने के So लिए। there people went to establish church in Samaria, और कुछ लोग ने समरिया में जाकर कलीसिया की स्थापना की गई, Galilee, गलीली में किया, Antioch. अंतियोखिया में किया। So we observe what was going on in all these churches. और हम इन बातों को देखते हैं कि इन कलीसिया में क्या क्या बातें हुई। And you know what? Some of these churches were not planted by apostles. और हम देखते हैं इन स्थानों में जो कलीसिया की स्थापना हुई वो प्रेरितों के द्वारा नहीं की गई। So at the church of Antioch, there were some believers who went and planted the church. और अंताकिया की कलीसिया को देखते हैं कि कुछ विश्वासियों ने वहां पर कलीसिया का निर्माण किया। So the Bible does not give the name of any person who has established the church of और Antioch. बाइबल में किसी का नाम व्यक्त नहीं किया गया कि इस फलाने व्यक्ति ने कलीसिया का निर्माण किया गया। So what understanding does this give us? और ये बात हमें किस बात को दर्शाता है, किस बात को समझाता है हमें? So to plant the church, you need not have a pastor, prophet, apostle. कलीसिया का निर्माण करने के लिए या स्थापना करने के लिए किसी पास्टर की आवश्यकता नहीं, या कोई प्रेरित या कोई प्राचीन की आवश्यकता नहीं है। So the church can be established by believers, और ये कलीसिया विश्वासियों के द्वारा स्थापना की जाती है, but it will eventually need to be led by a pastor. लेकिन ये से समाचार कार्य की अगुवाई एक पास्टर के द्वारा होना चाहिए। Okay, so now you tell me, what categories of leaders have we seen in the church? और आप बताइए कौन सा तरीका या योग्यता होना चाहिए कलीसिया की सेवकाई में? First was पहला कौन सा? apostles, very good. Then after that, दूसरा, what's the next category? अगला तरीका। Deacons. Okay, are you all with me? आप लोग हमारे साथ में हैं? Fine. So we've reached deacons now. अभी तक हम डीकन के तक हम पहुंचे हैं। And from Acts chapter 11, you notice that there is a word called elders. अब प्रेरितों काम की पुस्तक में जब आते हैं वहां पर प्राचीनों का उदय हुआ। So elders were leaders of the church. और Elders were leaders of the church. जो प्राचीन लोग वो कलीसिया के जो होते थे, So you have names like Barnabas, Saul. They were all elders. They called the elders of the church. और हम देखते हैं बरनबास और साउल ये कलीसिया के प्राचीन लोग थे। No, Barnabas and Saul, they called for the elders. I'm sorry, I stated it in a different way. So Paul and Barnabas called for the elders. हाँ, बरनबास और साउल
प्राचीन होने के लिए वो भेजे गए या बुलाए गए। Okay, so there is another category now called as elders. अब यहाँ पर दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है प्राचीन, Okay, they are spiritual leaders. और ये आत्मिक अगुवे थे। And you begin to see that in the churches, new leaders were appointed. और यहाँ पर देखते हैं कि एक नए अगुवों का निर्माण या अगुवों को तैयार करने वाली बातें। So this word elder is from the Greek word presbyteros. और ये प्राचीन जो शब्द है यूनानी भाषा का है, जो प्रेस्बिटेरियस के नाम से So कहलाते हैं। elders doesn't mean old in age. और प्राचीन का मतलब ये केवल बुजुर्ग जो उम्र में उम्र दराज या उम्र वाले नहीं है, 60 के ऊपर वाले नहीं। So it means elders spiritually. और इसका मतलब ये है कि वो जो प्राचीन है आत्मिक अगुवों को संबोधित करते हैं। So in the church of Jerusalem in Acts 15, you see that there are a team of apostles and elders. और हम देखते हैं कि प्रेरितों काम की पुस्तक 15 अध्याय में वहां पर प्रेरितों के समूह और आत्मिक अगुवे के समूह को हम देखने पाते हैं। Okay, so by now it's become a team. There are apostles and elders. आप देखते हैं कि प्रेरित और प्राचीन जो है होते हैं वो एक दल का एक समूह में होकर काम करना है, तत्व करना। So I think there's a question you can ask. I don't know where the mic is. Greek word. It's on page 31 पेज नंबर। प्रेस्बिटेरियस, Yeah, presbyteros. दैट मीन्स प्रेस्बिटेरियस शब्द आत्मिक अगुवे या आत्मिक अगुवे करके दिया गया। Okay. 31 हिंदी में। हिंदी बुक में 31 है। Oh wait. I think page 29. English 27. It's on 29 also. Yeah, but you got it right. Okay, fine. All right, so let's move on. We've seen now a team of apostles and elders. अब प्रेरित और प्राचीन के समूह को हम देखने पाते हैं, So, नेतृत्व का दल। what categories do we have till now? अभी तक हमने कौन से ऐसे समूह को देखे हैं? Apostles, deacons, elders. Very good. Okay. प्रेरित, डीकन्स और प्राचीन लोग। And we start to see from Acts 11 that there is something called team ministry. और हम यहाँ पर देखते हैं समूह में कार्य करना। So there were teachers in the church of Antioch. और हम देखते हैं उस कलीसिया में, अंत्योकी कलीसिया में शिक्षक लोग हैं। So there are names like Simeon, Lucius, Manaen. They're all teachers. और वहां पर हम नाम दिया गया है सिमेओस और अंत्योकी कलीसिया में। So in the beginning, we only saw one leader. और शुरुआत में हम देखते हैं केवल एक अगुवा था। But now there is a team of leaders. अब यहाँ पर देखते हैं समूह में होकर कार्य करते हुए। Okay, and as you continue in the book of Acts, जब हम प्रेरितों काम की पुस्तक हम जो लगातार पढ़ते हैं, we read about the ministry of Paul. और वहां पर हम पौलुस की सेवकाई के बारे में जानते हैं। And later on, Paul appointed leaders in the churches that were established. और जहां जहां पौलुस ने कलीसिया की स्थापना किया वहां का वो अगुवा ठहरा। And slowly, what happened is there emerged senior leaders or senior pastors of those churches. और हम देखते हैं कि बाद में धीरे से जो अनुभवी जो पासबानों की नियुक्ति हुई, पासबान ठहराए गए। For example, Timothy is the pastor of the church of Ephesus. और हम देखते पाते उदाहरण के लिए तीमुथियुस इफिसस कलीसिया का पासबान ठहराया गया। Titus is the pastor of the church of Crete. और जो तीतुस है वो क्रेत का कलीसिया का अगुवा बना। So the senior pastor or the main pastor, in other words, they even call them bishop. और हम दूसरी भाषा में देखते हैं वो मुख्य अगुवे थे, लेकिन वो बिशप एक अध्यक्ष के रूप में वो ठहराए गए। So these are all the terms that you read in church leadership.
और ये जो शब्दों को हम देखते हैं कलीसिया के अगुवेपन में पाया जाता है। In Revelation 2 verse 1, Revelation chapter 2 verse 1, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 में the scripture says, to the angel at the church of Ephesus. एफेसस की कलीसिया के दूत के बारे में वहां बताया गया, लिख। So what is the meaning of angel of the church? इसका अर्थ क्या है कलीसिया के दूत का? So does it mean that every church has an angel? क्या इसका मतलब ये है कि सभी कलीसिया में स्वर्गदूत है या So दूत है? in Bible interpretation, when we look at the meaning of that word angel, it means messenger. और दूत का मतलब है संदेश वाहक। So who is the messenger to the church? कलीसिया के लिए कौन संदेश वाहक है? The pastor, right? So the पासबान। main pastor of the church. कलीसिया का पासबान। And that is why in the book of Revelation, you see that God is talking to the pastors of each church. और हम प्रकाशित वाक्य में हम इस बात को देखते हैं कि वो जो दूत का अर्थ है, इसका मतलब है कलीसिया के पासबान को उस बात को बताते हुए, अर्थ बताते हुए। So we started with apostle, deacon, then elders, and हमने now we've प्रेरितों के बारे में, उसके बाद डीकन्स के बारे में, प्राचीनों के बारे में, और उसके बाद प्राचीन और अगुवों के बारे में, अब पासबान के बारे में हमने देखा। okay, and also team ministry. और साथ साथ में हमने समूह में कार्य करने वाले समूह को, दल को हमने देखा। And to the Ephesians, in Ephesians chapter 4, Paul writes about fivefold ministry. और इफिसी की पत्री में 5 प्रकार की सेवकाई के बारे में पौलुस बताता है। So what Paul is saying is that God has given the fivefold ministry to teach or equip the church. और 5 प्रकार की जो सेवकाई है वो पौलुस बताता है कलीसिया में रहकर उस काम को करने के लिए, सिखाने के लिए। So the fivefold ministry is supposed to work together. और 5 प्रकार की जो सेवकाई है वो सेवकाई एक साथ मिलकर कार्य करने का। So it's not like, only the apostles or only the prophets or different groups have to work. और इसका मतलब ये नहीं कि एक भविष्यवक्ता की टीम और उपदेशक की टीम, इस प्रकार अलग अलग टीम बनाकर काम करने का नहीं है। Ideally, we can have a team of all these fivefold ministry offices in the local church. और ये 5 प्रकार की जो सेवकाई है, ये 5 प्रकार की स्थानीय कलीसिया में रहकर कार्य करने की प्रणाली है। So all these 5 should work together. और ये 5 मिलकर एक साथ काम करना है। So based on this structure, और इस नींव का जो आधार जो है, we find that churches have decided their own structures. और कलीसियाओं ने खुद ही उसका निर्णय ले लिया उस नींव का आधार बनाने के So लिए। when we look at many of the mainline churches, जब हम देखते हैं कि मुख्य जो बड़ी बड़ी जो कलीसियाएं, संस्थाएं हैं, so names like Methodist, Baptist, Presbyterian, और मेथोडिस्ट चर्च और प्रेस्बिटेरियन चर्च, जो पारंपरिक रूप से जो स्थापित की गई चर्च कलीसियाएं, so they have what is known as a clerical system. और उनके पास ये एक तरीका, प्रणाली है जो इस काम को धर्म प्रांतों में तबादला करने के लिए, समझाने के लिए, स्थान को नियुक्त करने के लिए। That system is, there is a group called as clergy, और ये पुरोहित की रचना है, and all the people who come and attend services are called laity. और जो लोग इकट्ठा होते हैं उनको Laity, or just like regular people. और जो साधारण लोग जो कलीसिया में आकर आराधना में भागी लेते हैं। So only the clergy will involve in spiritual ministry. और जो पुरोहित है वो आत्मिक कामों में सहभागी रहता है या आत्मिक कामों को करता है। The clergy or the people will not involve in. और जो समूह है, जो लोग आते इकट्ठा होते हैं भक्ति के लिए, उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं, केवल आकर वो सभा में बैठना, सभा के कार्य प्रणाली को देखना। Okay, and they may have different churches, they move their pastors or their leaders across churches. और आपने देखा होगा अलग अलग कलीसियाओं में कि एक पुरोहित एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित किए जाते हैं, उनको ट्रांसफर किया जाता है। Okay, so that's how the clerical system works. और ये है कि जो स्थानीय जो कहते हैं धार्मिक बात, धर्म प्रांत को कहता है कि वहां पर वो लोग क्या करते हैं, उस काम को करते हैं, चुनाव करते हैं उनको भेजने का। Okay, so there is no exact structure that God has given to the churches. और वो परमेश्वर की ओर से
नियुक्ति की प्रणाली नहीं है, लेकिन वो इंसान के द्वारा बनाई गई प्रणाली है। No, God has not given an exact structure for every church to follow. परमेश्वर ने उस प्रणाली को नहीं दिया है उन कलीसियाओं में करने के लिए। Okay, so what has happened is different churches have adopted their own structure. और कलीसियाओं ने उससे क्या किया, उन बातों को नियम के आधार पर ले लिया और उनके अनुसार वो करते हैं। So another system that people have applied is called the elder system. और कुछ लोग प्राचीन के रूप में उनको तरीका को अपनाने के रूप में उसको अपनाते हैं। I have been to such churches. और मैं ऐसी कलीसियाओं में गई हूँ। So they don't have a pastor. कई ऐसी जगह है वो उनके पास पासबान नहीं है या अगुवा नहीं है। They are a group of elders. और उनके पास प्राचीनों का समूह होता है। And they cooperate together to run the church. और वो एक साथ मिलकर कलीसिया को संचालन वो करते हैं। So this is one style or one structure of running church. और इस प्रकार ऐसी कलीसिया का प्रणाली होती है, संचालन होता है करने का। Another common system is independent local church. और दूसरा जो प्रणाली है, स्वतंत्र रूप से स्थानीय कलीसिया का संचालन करना। So usually it will be led by a pastor or a pastoral team. और ये जो संचालन होता है, पासबान जो अगुवा होता है, उसके साथ जो दल होते हैं, समूह, उसके द्वारा संचालित करने के द्वारा। So one of the advantages is that there is a clear vision because the pastor gives a clear vision. और वहां पर इस बात को हम देखते हैं कि वहां पर वो जब उन्नति को बढ़ोतरी देते हैं, एक स्पष्ट दर्शन उनके पास पासबान के द्वारा होता है कार्य करने के लिए और जगह में जाने के लिए। There is opportunity for creativity because they work as a team. Everybody's ideas come together. और वहां पर देखते हैं लोगों का जो विचार आता है, सृजनात्मक रूप से उन चीजों को तैयार करते हैं कार्य करने के लिए। Okay, so this is independent local churches. और ये स्वतंत्र रूप से जो स्थानीय कलीसिया कार्य करती है। So what are some of the challenges in this system? और ये ऐसे जो कार्य प्रणाली में कौन सी चुनौतियों को हम देखने पाते हैं। So one challenge is that if the pastor is very strong, it may become completely under him, meaning he can have a lot of influence on the community. क्या होता है कि वो मुख्य पास्टर जो होता है वो तानाशाह बन जाता है और वो खुद समाज के लोगों का संचालन करने का काम करता है। Okay, so it's as if the pastor can control everything if things go wrong. और वो पास्टर की जिम्मेदारी क्या जाती है कि जो कुछ अगर समाज में गलत काम हो रहा है वो पूरा अपने हाथों में लेकर काबू करने का प्रयास करता है। Okay, so we call it in English totalitarianism. और उसको हिंदी में बोलते हैं तानाशाह के रूप में। Okay, so that is a danger. और ये बड़ा खतरनाक होता है तानाशाही बनकर। Or the other challenge is if the pastor is good and everything, one problem can be that the next person who comes may not be as good. ये तो अच्छी बात है कि पास्टर अच्छा होगा, अच्छा काम करते हैं, लेकिन एक दूसरा अगुवा वहां पर अगर आता है उसके लिए बड़ी उत्तरदायित्व को निभाना बड़ा कठिन हो जाता Okay, है। so if the succession is good, then the work will continue. अगर सफलता जो उसमें होती है, काम लगातार बढ़ते जाता है। If the right person is appointed after that pastor, then the work will continue. अगर एक सही अच्छा पासबान अगर वहां नियुक्त किया है तो जो कार्य अच्छा चल रहा है वो बढ़ोतरी की ओर होता है। But if it is not a good leader, the second one, अगर वहां पर दूसरा अगुवा का सही नहीं है, so all the hard work of years will, जितना पहला पासबान ने परिश्रम किया, तैयार किया, वो सब बर्बाद हो जाएगा। okay, so this is the second system. और ये दूसरा प्रणाली है कार्य करने का। There's another system called network of churches. और तीसरा जो प्रणाली, अगला जो प्रणाली है, कलीसियाओं का नेटवर्क करना, जोड़ने का काम करना। We know many such systems here in India. और हमारे भारत में कई पद्धति प्रणाली है, Where we see that under the same umbrella there are many churches. और एक ही छतरी के नीचे बहुत सारी कलीसियां जुड़ी हुई होती है। Like you may have heard the name Assemblies of God जैसे or आपने सुना Assemblies of God Church, or New Life churches. New Life Churches। So they have many churches under the same organizational umbrella. एक नाम की संस्था के अंतर्गत अलग अलग जगह बहुत से कलीसिया वहाँ स्थापित होती है, कलीसिया पाई जाती है। Okay. Now the challenge that can happen in this system again is if the leader is not good, then
the wrong kind of control, abuse, all those things can यहाँ happen. पर चुनौती क्या आता है? अगर मान लीजिए अगवा गलत है, नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर बड़ा खतरा होता है। But if the leader is good, then it's a great thing because they are taking care of so many churches. अगर मान लीजिए अगवा या उसका अध्यक्ष सही है, तो अच्छे रीति से कार्य बढ़ता है, चुनौतियों का सामना करके आगे प्रतिस्पर्धा वहां पर नहीं होती है। Okay, so this is another category of churches. ये अलग तरीका है, प्रणाली है कलीसिया का। How much time do we have? What time is it supposed to stop? Oh, it's already, time is up? टाइम भी सब। Okay, fine. All right, let's just take a break then. Thank you. ब्रेक लेकर वापस।